Dear learners, welcome back to the next session of our course Childhood and Growing Up. In this session, we will discuss about the parenting styles influencing developmental aspects of childhood and adolescence. A parenting style is a psychological construct representing standard strategies that parents use in their child rearing. बच्चों को पालने में जो पेरेंट्स हैं वो अपने साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट जो रिप्रेजेंट करते हैं और जो स्टैंडर्ड स्ट्रेटजीज अपनाते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं पेरेंटिंग स्टाइल. The quality of parenting can be more essential than the quantity. Quality is more important than quantity of time spent with the child. For instance, a parent can spend an entire afternoon with his or her child, yet the parent may be engaging in a different activity and not demonstrating enough interest towards the child. Parenting styles are the representation of how parents respond to and make demands on their children. अगर यहाँ पर देखा जाए कि अगर पूरा आफ्टरनून उन्होंने अपने बच्चे के साथ तो रहे, वो उनके पास थे लेकिन उनके साथ किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट बच्चों के साथ नहीं थी, तो वो क्या हुआ, वो क्वांटिटी उन्होंने प्रोवाइड की बट क्वालिटी नहीं प्रोवाइड की. ठीक है. Parenting practices are specific behaviors, while parenting styles represent broader patterns of parenting practices. There are various theories and opinions on the best ways to rear child, as well as differing levels of time and effort that parents are willing to invest. Theories of child rearing. Jean Piaget's theory of cognitive development describes how children represent and reason about the world. ये थ्योरी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं. This is a developmental stage theory that consists of a sensory-motor stage, pre-operational stage, concrete operational stage, and formal operational stage. Similarly, Erik Erikson, a developmental psychologist, proposed 8 life stages through which each person must develop. In order to move on to the next stage, the person must work out a crisis in which a new dilemma must be solved. तो ये थ्योरी भी हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर की है. तो ये कुछ थ्योरीज थी चाइल्ड रियरिंग से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पर पेरेंटिंग की बात नहीं की गई थी. So, in the 1960s, psychologist Diana Baumrind conducted a study on more than 100 preschool-age children using naturalistic observation, parental interviews, and other research methods. She identified some important dimensions of parenting. These dimensions include disciplinary strategies, warmth, and nurturing, communication styles and expectations of maturity and control. यहाँ पर उन्होंने जिन जिन डायमेंशंस की बात की है, ठीक है, जिसके बारे में उन्होंने रिसर्च किया है, वो क्या क्या है, उनमें इन्वॉल्व है, इंक्लूडेड है डिसिप्लिनरी स्ट्रेटेजीज, वार्मथ एंड नर्चरिंग, कम्युनिकेशन स्टाइल्स बिटवीन पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन, एक्सपेक्टेशंस ऑफ मैच्योरिटी एंड कंट्रोल. एक्सपेक्टेशन किससे होगी, बच्चों से होगी, तो पेरेंट्स की बच्चों से मैच्योरिटी और कंट्रोल से रिलेटेड जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं. बेस्ड ऑन दीज डायमेंशंस, Baumrind suggested that the majority of parents display one of the 3 different parenting styles, यानी कि इसने मेनली 3 parenting styles बताए हैं और इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग इनको कंसिडर करते हुए पेरेंट्स इन्हीं में से किसी ना किसी एक पेरेंटिंग स्टाइल को अपनाते हुए पाए गए. ठीक है. सो मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स यानी कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो या तो मिक्स दिखा रहे होंगे या फिर बिल्कुल अलग दिखा रहे होंगे. ठीक है, तो वो एक्सेप्शंस की तरह यहाँ पर ट्रीट किया गया है. तो मोस्टली यहाँ पर इन्हीं 3 पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में बात की जाएगी और उन्हीं से बॉम्रिंग के अकॉर्डिंग parents display one of the 3 different parenting
styles. Later research by Maccabee and Martin suggested adding a fourth parenting style. Each of these has different effects of children's behavior. तीन जो है वो पेरेंटिंग स्टाइल मेनली बताए थे बॉम्बे ने, और उसके बाद मैकोबी और मार्टिन ने एक और फोर्थ पेरेंटिंग स्टाइल इसी में इंक्लूड कर दिया. Let's see them one by one. The first one is authoritarian parenting. क्या होता है authoritarian parenting में? In this style of parenting, children are expected to follow the strict rules established by the parents. यानी कि उनके ऊपर क्या है, रूल्स थोप दिए जाते हैं. फेलियर टू फॉलो सच रूल्स यूजुअली रिजल्ट इन पनिशमेंट. और अगर उन रूल्स को आप फॉलो ना करो तो बच्चों को क्या मिलती है, पनिशमेंट मिलती है इन वन वे और द अदर. अथॉरिटेरियन पेरेंट्स डोंट एक्सप्लेन द रीजनिंग बिहाइंड दीज रूल्स. हालांकि अगर रूल्स के पीछे की रीजन हमें बता दिया जाए, यानी कि बच्चों को बता दिया जाए, तो उन रूल्स को मानना हमारे लिए आसान हो जाता है. लेकिन अथॉरिटेरियन पेरेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो रूल बना देते हैं और उन रूल्स के पीछे कोई रीजन बच्चों को एक्सप्लेन नहीं करते. इफ आस्क्ड टू एक्सप्लेन द पेरेंट्स माइट सिंपली रिप्लाई बिकॉज आई सेड सो. अगर उनसे पूछा जाए कि ये रूल क्यों है, ठीक है, अगर बच्चे सवाल करें कि मैं ये काम क्यों करूं या मैं ये रूल फॉलो क्यों करूं, तो पेरेंट्स रिप्लाई देते हैं बिकॉज आई सेड सो, क्योंकि मैंने कहा है इसलिए तुम्हें ये काम करना पड़ेगा. तो इस तरह की जो पेरेंटिंग है दैट इज अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग. While these parents have high demands, they are not very responsive to their children. बच्चों से डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और बच्चों को रिस्पॉन्स बहुत कम दे रहे हैं. जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, रीज़न बताने की बजाय उन्होंने कह दिया कि मैंने कहा है इसलिए आपको ये रूल फॉलो करना होगा. So they expect their children to behave exceptionally and not make errors. And you know human is to error. तो यहाँ पर बच्चों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो रूल्स को बिल्कुल वैसा का वैसा फॉलो करें, बिल्कुल एक्सेप्शनली वो बिहेव करें और किसी तरह की कोई गलती ना करें. Yet they provide very little direction about what their children should do or avoid in future. यानी कि उन्हें एक्सप्लेन बहुत कम किया जाता है कि उन्हें उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है और उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है. ठीक है, बट उनसे एक्सेप्शनली वो अपने आप ये सब जाने, वो सारे रूल्स को फॉलो करें. इस टाइप की जो थिंकिंग होती है वो होती है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल में. मिस्टेक्स आर पनिश्ड. अगर कोई गलती हुई तो पनिशमेंट दे दी जाती है, ऑफन क्वाइट हार्शली, और ज़्यादातर ये काफ़ी कठोर भी हो सकती है. येट देयर चिल्ड्रन आर ऑफन लेफ्ट वंडरिंग एग्जैक्टली व्हाट दे डिड रॉन्ग. और क्योंकि उन्हें क्या हुई, उनसे मिस्टेक हुई, उन्हें पनिशमेंट मिली, और यहाँ पर बच्चों को ये पता ही नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि उनसे गलती कहाँ हुई है और उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था, उन्हें पनिशमेंट क्यों मिल रही है. तो ऐसे जो पेरेंटिंग स्टाइल है उसे अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग कहा गया है. एंड विद दिस knowledge you can say that it is not the best method of parenting. अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग के बारे में वॉमरिन ने कहा है, these parents are obedience and status oriented. यानी कि जो बच्चे हैं वो बिल्कुल ओबीडियंट हो और उनका जो स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करें. तो वो क्या होते हैं, ओबीडियंस और स्टेटस ओरिएंटेड होते हैं. एंड एक्सपेक्ट देयर ऑर्डर्स टू बी ओबेड विदाउट एक्सप्लेनेशन. और बच्चों से वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बिना किसी एक्सप्लेनेशन के उनके ऑर्डर को बच्चे फॉलो करें. दे आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज डोमिनेटिंग और डिक्टेटोरियल. यानी कि जो सत्तावादी एक तरीके से कह सकते हैं या फिर तानाशाह जिसे कह सकते हैं. तो इस टाइप के पेरेंट्स उन्हें प्राय कहा जाता है. देयर अप्रोच इज स्पेयर द रोड स्पॉइल द चाइल्ड. कि क्या हुआ कि खुला छोड़ोगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा, ऐसा उनका क्या होता है, सोचना होता है. दे एक्सपेक्ट चिल्ड्रन टू ओबे विदाउट क्वेश्चंस. और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे उन्हें उनकी आज्ञा का पालन करें बिना किसी सवाल के. ठीक है, तो जो वो कहें वो बच्चे मानते रहें, किसी तरह का सवाल वो खड़ा ना करे. कोई उनकी क्यूरियोसिटी है उसके लिए वो कोई रिप्लाई नहीं देते, उनको कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते. बस वो ये चाहते हैं कि जो उनका स्टेटस है, ओबीडियंस वो है, बच्चे शो करें, उनका स्टेटस जो है उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करें, उनके ऑर्डर्स को माने और किसी तरह का
कोई ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन ना करे. So that was first type of parenting, authoritarian parenting. The second one is authoritative parenting. वर्ड में डिफरेंस जो है वो बहुत कम है, ऑथोरिटेरियन एंड ऑथोरिटेटिव. Like authoritarian parents, those with an authoritative parenting style establish rules and guidelines that their parents are expected to follow. यहाँ पर भी क्या होता है, पेरेंट्स जो हैं वो रूल्स और गाइडलाइंस बनाते हैं जैसे कि ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स बनाते हैं. तो क्या डिफरेंस है दोनों में? दिस पेरेंटिंग स्टाइल इज मच मोर डेमोक्रेटिक. वो क्या थी? वो एक टाइप से वो तानाशाही डिक्टेटोरियन थी, लेकिन ये क्या है, डेमोक्रेटिक है. यानी कि यहाँ पर बच्चों को भी बोलने का, बच्चों को पूछने का पूरा हक दिया जाता है. अथॉरिटेटिव पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिव टू देयर चिल्ड्रन. रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब है? अगर बच्चे कोई सवाल पूछ रहे हैं, वो किसी चीज के लिए क्यूरियस है, कोई कारण जानना चाहते हैं, तो वो पेरेंट्स सीधा ये नहीं कहेंगे क्योंकि मैंने कहा इसलिए तुम ये काम करो, बल्कि उन्हें बताएंगे कि उन्हें कुछ भी करने के लिए कहा गया है तो क्यों कहा गया है. एंड पेरेंट्स आर विलिंग टू लिसन टू क्वेश्चंस. और उनकी भी इच्छा होती है कि बच्चे क्वेश्चन करें. Those parents expect a lot of their children. बच्चों से एक्सपेक्टेशंस हाई रखते हैं, बट दे प्रोवाइड वार्मथ, फीडबैक एंड एडिक्वेट सपोर्ट. वो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन एक्सपेक्ट करने के लिए उन्हें प्रॉपर हर तरह से रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं, नॉट ओनली इन द फिजिकल मैनर बट ऑल्सो टू द इमोशनल पार्ट. ठीक है, तो वो उन्हें वार्मथ, जो भी वो कर रहे हैं उसके लिए उन्हें पनिशमेंट ना देकर उन्हें फीडबैक दिया जा रहा है, और उन्हें जिस सपोर्ट की जरूरत होती है, ठीक है, चाहे वो मोरल सपोर्ट हो या किसी और टाइप की सपोर्ट, तो वो उन्हें पूरी दी जाती है. When children fail to meet the expectations, these parents are more nurturing and forgiving rather than punishing. कि आपने कुछ गलती की है तो उसके लिए वो आपको पनिशमेंट नहीं देंगे, वो आपको फीडबैक देंगे, और जो पनिशमेंट है उसको फॉरगिव करेंगे, और आपको क्या देंगे, वार्मथ देंगे, जिससे आप क्या करें, ग्रो कर सकें, यानी कि बच्चे ग्रो कर सकें. सो हियर यू सी ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग is much better than the authoritarian parents. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रूल्स और गाइडलाइंस हैं, लेकिन बच्चों को पता है कि वो रूल्स और गाइडलाइंस क्यों है, तो उन्हें फॉलो वो कर सकते हैं. एंड फर्दर इफ दे हैव एनी क्वेश्चन, तो ये डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ पेरेंटिंग है. यहाँ पर बच्चों से क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जाता है, उन क्वेश्चंस को रिस्पॉन्स भी दिया जाता है, और कोई गलती हो जाती है, कोई एरर है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, पनिशमेंट ना दे करके उन्हें नर्चरिंग और फॉरगिविंग दी जाती है. बॉमरेंट क्या कहते हैं इस बारे में? बॉमरेंट सेज दीज पेरेंट्स मॉनिटर एंड इम्पार्ट क्लियर स्टैंडर्ड्स फॉर देयर चिल्ड्रंस कंडक्ट. दे आर असर्टिव बट नॉट इंस्ट्रक्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव. ना तो बहुत ज़्यादा वो रेस्ट्रिक्टिव टाइप का बिहेवियर शो करते हैं, ना ही उनसे इंस्ट्रूमेंट की तरह बिल्कुल परफेक्ट वो बच्चे करते रहें, ऐसा उनसे जो है एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. देयर डिसिप्लिनरी मेथड्स आर सपोर्टिव रेदर देन प्यूनिटिव. वो उनके जो डिसिप्लिन के मेथड हैं, बच्चों से वो डिसिप्लिन एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन वो बच्चों से डिसिप्लिन कैसे करवाते हैं, वो उन्हें सपोर्ट देकर, ना कि उन्हें पनिशमेंट देकर. They want their children to be assertive as well as socially responsible and self-regulated as well as cooperative. तो बच्चों से वो क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो assertive रहें, socially responsible रहें, self-regulated रहें और cooperative रहें. The combination of expectation and support, expectation भी है, support भी है, help children of authoritative parents develop skills such as independence, self-control, self-regulation. So you can see it is much better type of parenting. It is a very good parenting style. ठीक है, but the things always don't go to their best. ये हम आगे देखेंगे कि यहाँ पर भी क्या जो है कमी रह जाती है. Permissive parenting. Permissive parents, sometimes referred to as indulgent parents, make very few demands of their children
These parents rarely discipline their children because they have relatively low expectations of maturity and self control. उन्हें लगता है मतलब बच्चे बच्चे ही हैं तो वो गलतियां ही करते रहेंगे, वो जो है मैच्योरिटी शो कर ही नहीं सकते, वो सेल्फ कंट्रोल शो कर ही नहीं सकते। तो जब बच्चों से आप इस तरह से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो जो है अच्छा बिहेवियर शो नहीं कर सकते, ठीक है, तो एक तरीके से उनके कैपेसिटी, उनकी कैपेबिलिटीज पर ही क्वेश्चन मार्क लग जाता है। सो यू कैन सी इट इज नॉट द बेस्ट। ठीक है, ये अच्छा है कि वो उन्हें बच्चों को उनका स्पेस देते हैं, लेकिन उनसे बिल्कुल ही एक्सपेक्ट जो है बिल्कुल कम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो विद टाइम मैच्योरिटी शो करे, सेल्फ कंट्रोल शो करे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉमरेंट, परमिसिव पेरेंट्स आर मोर रिस्पॉन्सिव देन दे आर डिमांडिंग। वो बच्चों से एक्सपेक्ट बहुत कम करते हैं, उन्हें रिस्पॉन्स पूरा देते हैं। दे आर नॉन ट्रेडिशनल एंड लेनियंट, यानी कि वो छूट देते हैं। जो ट्रेडिशनल जो है डिसिप्लिन, उनके ऊपर, बच्चों के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके ऊपर नहीं थोप दिए जाते, बल्कि वो काफी ज्यादा छूट देते हैं। डू नॉट रिक्वायर मैच्योर बिहेवियर, बच्चों से उनको जो है मैच्योर बिहेवियर नहीं चाहिए। दे अलाउ कंसिडरेबल सेल्फ रेगुलेशन, हाँ बच्चे अगर खुद से जो है रेगुलेशन शो करें, खुद से डिसिप्लिन शो करें, तो वो उसे अलाउ करते हैं। एंड अवॉइड कन्फ्रंटेशन, ठीक है, तो बच्चों को कन्फ्रंट वो करना जो है अवॉइड करते हैं। परमिसिव पेरेंट्स आर जनरली नर्चरिंग एंड कम्युनिकेटिव विद देयर चिल्ड्रन, वो उन्हें पूरा जो है नर्चर देते हैं और उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट भी करते हैं। ऑफन टेकिंग ऑन द स्टेटस ऑफ अ फ्रेंड मोर देन दैट ऑफ अ पेरेंट, तो वो बच्चों को जो है एज अ पेरेंट उनके साथ बिहेव करते हैं, उनके पेरेंट होने से ज्यादा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी सी जरूरत से ज्यादा ही लीनियंसी है, बिकॉज दे हैव वेरी लो एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशंस भी जब नहीं होती हैं तो दिस ऑल्सो अफेक्ट नेगेटिवली, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट चला जाता है। लीनियंसी है, वो बच्चों को उनकी जो है पूरा उनका स्पेस दे रहे हैं, अच्छी बात है, बट यहाँ पर क्या है, उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत कम रहते हैं और हर टाइम एज अ फ्रेंड बिहेव करना इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। समटाइम्स यू हैव टू बिहेव एज अ फ्रेंड, ठीक है, ताकि बच्चों को आप स्पेस दे सकें, बट इट्स नॉट फॉर ऑलवेज। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो गया, एक्सेस हो गई लीनियंसी की। द फोर्थ टाइप इज अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग, जहां पर बच्चों को जो है पेरेंट्स बहुत कम टाइम देते हैं और बहुत ही कम क्वालिटी, यानी क्वांटिटी भी कम और क्वालिटी भी कम। ठीक है, इन एडिशन टू द थ्री मेजर स्टाइल्स, उन स्टाइल्स में क्या थे, पेरेंट्स है वो इन्वॉल्व थे। फर्स्ट में वो बच्चों को इंस्ट्रक्ट करने में इन्वॉल्व थे, सेकंड में वो बच्चों को नर्चर करने में ज्यादा इन्वॉल्व थे, थर्ड में उन्हें लीनियंसी दे रहे थे, बट एज अ फ्रेंड वो बच्चों के साथ पूरी तरह इन्वॉल्व थे। लेकिन यहाँ पर वो पेरेंटिंग स्टाइल आ जाता है जिसमें पेरेंट्स बहुत ही कम इन्वॉल्व होते हैं। In addition to the three major styles introduced by Baumrind, psychologists Eleanor McCoby and John Martin proposed a fourth style. Fourth style क्या है? Uninvolved और neglectful parenting. An uninvolved parenting style is characterized by few demands, low responsiveness and very little communication। बच्चों के साथ communication ही जहाँ बहुत कम है, और ये वहां पर बहुत ज्यादा हो जाता है जहां पर बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, जहां पर दोनों ही पेरेंट्स कैसे हो, वर्किंग हो, और वो भी फुल टाइम अगर वो वर्किंग है तो वो बच्चों के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं निकाल पाते, ऐसा पॉसिबल है। While these parents fulfill the child's basic needs, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं कि आपको प्रॉपर क्लोथिंग मिल रही है, आपको प्रॉपर स्कूलिंग मिल रही है, आपको जो है खाना टाइम पर मिल रहा है, कपड़े साफ सुथरे मिल रहे हैं, that is all they think to provide. They are generally detached from their child's life. बच्चों की लाइफ से उनकी अटैचमेंट बहुत कम होती है। They might make sure that their kids are fed and have shelter, कि वो अच्छे से खा पी रहे हैं, अच्छे से उनके पास रहने के लिए और सर्वाइवल के लिए अच्छे से जगह है, बट ऑफर लिटल टू नथिंग इन द वे ऑफ गाइडेंस, स्ट्रक्चर, रूल्स और इवन सपोर्ट।
वो ये तो जो है उन्हें जैसे कि बेसिक जो उनकी नीड्स हैं, बहुत ज़्यादा जो बेसिक नीड्स हैं सर्वाइवल के लिए, वो तो उन्हें प्रोवाइड कर देते हैं। रहने के लिए अच्छी जगह है, अच्छा उनको खाना जो है वो मिल रहा है, ठीक है। जो सारी सुविधाएं हैं वो उन्हें मिल रही हैं, लेकिन ना तो उन्हें वो किसी तरह से गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि कम्युनिकेशन ही नहीं है। उन्हें ना कोई स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं कि उन्हें अपनी लाइफ को किस तरीके से जो है जीना है। एंड मोस्ट बच्चे क्या होते हैं, बहुत यंग एज में अगर वो हैं तो वो खुद की लाइफ का स्ट्रक्चर खुद से नहीं अच्छे से डिजाइन कर सकते। किसी तरह का कोई रूल नहीं होता, और रूल भी नहीं है, और किसी तरह की कोई सपोर्ट भी नहीं है क्योंकि कम्युनिकेशन ही नहीं है, रिस्पॉन्स ही नहीं है, तो सपोर्ट क्या होगी। In extreme cases, these parents may even reject or neglect the needs of their children. क्योंकि बच्चों को पेरेंट्स की ज़रूरत होती ही है, लेकिन इस टाइप के जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो बच्चों की नीड्स को या तो रिजेक्ट कर देते हैं या नेग्लेक्ट कर देते हैं। लाइक पेरेंट्स टीचर मीटिंग अगर स्कूल में हो रही है तो दे विल रिजेक्ट गोइंग देयर, वी डोंट हैव टाइम फॉर यू, ठीक है। तो इस टाइप से उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज है कि बच्चे को घर पे थोड़ा सा उनको टाइम दे, उनके साथ बात करें, तो इस नीड को वो क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो बच्चों के साथ वो पूरी तरह क्या होता है, डिटैच्ड होते हैं, ठीक है। अटैच का उल्टा है डिटैच। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस वन इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ द फोर पेरेंटिंग स्टाइल्स। लेकिन आप देख सकते हैं दीज आर सम काइंड ऑफ आइडियल, और आइडियलिज्म रियल लाइफ में आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, ठीक है। द इम्पैक्ट ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स, तो आपने जो पेरेंटिंग स्टाइल्स पढ़े हैं उनके क्या क्या इम्पैक्ट रहते हैं, क्या असर होता है बच्चों पर। So what effects do these parenting styles have on child development outcomes? In addition to Baumrind's initial study of 100 preschool children, researchers have conducted a number of studies about the impact of parenting styles on children. बॉमरिन ने क्या किया था, 100 प्री स्कूल चिल्ड्रन के ऊपर अपनी रिसर्च की थी। इसके अलावा जो अदर साइकोलॉजिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, उन्होंने क्या किया है, और बहुत सारी स्टडीज हैं वो कंडक्ट की हैं, और उनमें देखा है कि पेरेंटिंग स्टाइल्स का बच्चों पर क्या प्रभाव रहता है। द फर्स्ट वन इज अबाउट ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग, जिसमें बच्चों को रूल्स बता दिए जाते हैं, नॉर्म्स बता दिए जाते हैं विदाउट एनी रीजन, एंड दे हैव टू ओबे देम विदाउट एनी क्वेश्चन। So authoritarian parenting styles generally led to children who are obedient and proficient, but they rank lower in happiness, social competence and self-esteem. उनको शुरू से ही क्या होता है, रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने सिखा दिए जाते हैं, तो वो ओबीडियंट होते हैं, प्रोफिशिएंट होते हैं, बट उनमें क्योंकि उनके क्वेश्चंस हैं उनको कभी जो है प्राथमिकता नहीं दी गई, उनको कभी आंसर नहीं किया गया। पेरेंट्स हैं, उनका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा, तो उनके अंदर हैप्पीनेस है उसकी कमी पाई जाती है, सोशल कॉम्पिटेंस उनके अंदर कमी पाई जाती है, और सेल्फ स्टीम भी उनके अंदर क्या होता है, कम होता है। द सेकेंड टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स वाज अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। इसमें क्या होता है, इट टेंड्स टू रिजल्ट इन चिल्ड्रन हु आर हैप्पी, कैपेबल एंड सक्सेसफुल। तो यहाँ पर पेरेंटिंग जो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल है उसका रिजल्ट क्या होता है, बच्चे जो है वो पाए जाते हैं हैप्पी, कैपेबल एंड सक्सेसफुल। द थर्ड वन पेरेंटिंग स्टाइल परमिसिव पेरेंटिंग। इसमें क्या होते हैं, वो रैंक लो इन हैप्पीनेस एंड सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन की बहुत ही इसमें क्या होगी, कमी होगी। दीज चिल्ड्रन आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स विद अथॉरिटी एंड टेंड टू परफॉर्म पुअरली इन स्कूल, ठीक है। तो ये था परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल का रिजल्ट। द लास्ट वन वाज अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग स्टाइल्स रैंक लोएस्ट अक्रॉस ऑल लाइफ डोमेन्स। जो ये पेरेंटिंग स्टाइल्स है इनमें से सबसे पुअर जो पेरेंटिंग स्टाइल है दैट इज अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग स्टाइल, and it ranked lowest across all life domains. These children tend to lack self-control, have low self-esteem, and are less competent than their peers. क्योंकि उनके पास क्या होती है, हर तरह की सुविधा होती है, पेरेंट्स का उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, बिकॉज उनके आपस में क्या है, कोई कन्वर्सेशन ही बहुत कम होती है, ठीक है।
तो उनकी तरफ पेरेंट्स का ध्यान नहीं था, तो उनमें सेल्फ कंट्रोल भी नहीं मिलेगा, सेल्फ स्टीम भी उनका लो रहता है। कंपटीशन की जो एक टेंडेंसी होती है वो भी उनमें नहीं पाई जाती। उनके जो पीयर ग्रुप है, उनके जो साथी हैं, उनसे वो कंपटीशन भी नहीं रखते। ठीक है, तो वो भी एक तरीके से अनइन्वॉल्व ही रहते हैं लाइफ के हर फेज में। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट द 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स। अब यहाँ पर आपने देखा कि चारों में से बेस्ट कौन सी लगी, ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग। तो इसकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं? बिकॉज ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स आर मोर लाइकली टू बी व्यूड एज रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट। देयर चिल्ड्रन आर मोर लाइकली टू कंप्लाई विद देयर पेरेंट्स रिक्वेस्ट। अब वो चाहे रिक्वेस्ट करें चाहे ऑर्डर करें, क्योंकि वो उनके क्वेश्चंस का जो है रिस्पॉन्स देते हैं। उनकी कोई क्वेरी है, कोई भी अगर उनके मन में जिज्ञासा है तो उसे भी वो शांत करते हैं। ठीक है, तो दे आर रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट, और बच्चे जो है उनकी रिक्वेस्ट को भी फॉलो करते हैं अच्छे से। ऑल्सो बिकॉज दीज पेरेंट्स प्रोवाइड रूल्स एज वेल एज एक्सप्लेनेशंस फॉर दीज रूल्स, चिल्ड्रन आर मोर लाइकली टू इंटरनलाइज दीज लेसन्स। क्योंकि उन्हें ये पता है कि वो काम जो है वो क्यों कर रहे हैं, तो अगर उनके पास क्यों का जवाब है तो वो उसे अच्छे से समझ जाते हैं। ठीक है, और वो उन लेसन्स को क्या कर लेते हैं, इंटरनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, वो रूल्स, वो रेगुलेशंस, वो रीजन, उस सबको क्या कर लेते हैं, वो समझ लेते हैं और इंटरनलाइज करते हैं। rather than simply following the rules because they fear punishment as they might with authoritarian parents, the children of authoritative parents are able to see why the rules exist. तो यहाँ पर जैसा कि अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग जो स्टाइल था उसमें क्या था, पनिशमेंट का फियर था, इसलिए वो फॉलो कर रहे थे। तो यहाँ पर वैसा नहीं है। बच्चे जो हैं वो देखते हैं कि रूल्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके लिए जो है वो सिंपली फॉलो नहीं करते क्योंकि वो पनिशमेंट का डर है, बल्कि वो उसको समझते हैं दैट दे आर फेयर एंड एक्सेप्टेबल्स, कि वो जो रूल्स हैं वो क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो उन्हें पता है कि वो जो रूल्स हैं वो फेयर है और एक्सेप्टेबल है, एंड स्ट्राइव टू फॉलो दीज रूल्स टू मीट देयर ओवन इंटरलाइज सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। तो उनके अंदर भी सही और गलत की भावना है वो सही से विकसित होगी और वो सही के साथ ही फिर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वो इसलिए नहीं रूल्स फॉलो करते क्योंकि उन्हें फियर है पनिशमेंट का, बल्कि उनके अंदर सेंस है राइट एंड रॉन्ग की, इसलिए वो रूल्स को फॉलो करेंगे। The parenting styles of individual parents also combine to create a unique blend in each family. For example, the mother may display an authoritative style while the father favors a more permissive approach. This can sometimes lead to mixed signals. In order to create a cohesive approach to parenting, it is essential that parents learn to cooperate and combine their unique parenting styles. अब हर कोई अपने आप में यूनिक होता है, तो ज़रूरी नहीं कि जो पेरेंट्स हैं वो बहुत पेरेंटिंग स्टाइल्स जो हैं वो सेम हो। ठीक है, वो अथॉरिटेटिव है या अथॉरिटेरियन है या फिर परमिसिव है या अनइन्वॉल्व है। ठीक है, हो सकता है उनमें से पेरेंट्स में से एक जो है वो अलग फॉलो करे, जो सेकंड पेरेंट है वो अलग टाइप से पेरेंटिंग स्टाइल फॉलो करे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो बच्चे के अंदर जो अलग अलग फीलिंग्स जो डेवलप होनी थी वो भी क्या होगा, ब्लेंड होगा एक टाइप से। ठीक है, मिक्स्ड जो है सिग्नल वो पास आउट करेंगे। तो यहाँ पर पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो कोऑपरेट करना और उनकी जो यूनिक पेरेंटिंग स्टाइल्स है उनको कंबाइन करना सीखें। लिमिटेशंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल रिसर्च। जो साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च की और पेरेंटिंग स्टाइल बताई, तो उस रिसर्च के बारे में क्या कहा गया है, उसकी क्या लिमिटेशंस बताई गई हैं और क्या क्रिटिक्स ने कहा है। अब समझिए कि देयर इज सम एविडेंस दैट अ चाइल्ड्स बिहेवियर कैन इम्पैक्ट पेरेंटिंग स्टाइल। जरूरी नहीं कि पेरेंट डिसाइड करे कि वो किस पेरेंटिंग स्टाइल को अपनाए, बल्कि बच्चों का बिहेवियर है वो भी काफी ज्यादा इस पर असर डालता है, वो भी इम्पैक्ट करता है कि कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल पेरेंट्स अपनाते हैं। फिर हर टाइम कोई एक ही तरह का पेरेंटिंग स्टाइल नहीं यूज में लाया जा सकता है। कभी कभी रूल्स बताए जाते हैं डायरेक्ट, कभी क्या होता है उनकी एक्सप्लेनेशन दे दी जाती है, कभी बच्चों को थोड़ा सा डरा के भी काम करवाना पड़ जाता है क्योंकि वो समझने को तैयार नहीं होते। बच्चों का नेचर अलग अलग हो सकता है।
फिर धीरे धीरे वो कभी कभी खुद से ही वो समझे, इसलिए भी उन्हें रूल्स ना बताए गए हो। तो कई सारे रीजन हो सकते हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो चाइल्ड्स बिहेवियर है वो इम्पेक्ट करता है पेरेंटिंग स्टाइल को। One study published in 2006 found that the parents of children who exhibited difficult behavior began to exhibit less parental control over time। जहां पर जो है बच्चों ने, ठीक है, जो चिल्ड्रन जिनको जो है डिफिकल्ट बिहेवियर जो एग्जिबिट करते थे, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनका पेरेंटल कंट्रोल टाइम के साथ क्या हो गया, खत्म होता गया, मतलब कम होता गया। Such results suggest that kids might misbehave not because their parents were too permissive, but because the parents of difficult or aggressive children gave up on trying to control their kids। कि कई बार क्या हुआ कि बच्चे अगर वो मिसबिहेव कर रहे हैं या राइट और रॉन्ग के बारे में वो जो अपना डिसीजन है वो गलत ले रहे हैं, वो इसलिए नहीं होता कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा परमिसिव थे या पेरेंट्स ने जो है गलत पेरेंटिंग स्टाइल यूज किया, बल्कि इसलिए भी हो सकता है कि वो इतने ज्यादा जो डिफिकल्ट और एग्रेसिव चिल्ड्रन थे उनके लिए जो पेरेंट्स थे उन्होंने कंट्रोल का क्या कर दिया, गिव अप कर दिया। ठीक है, कि अब इनको जैसे बढ़ना है ये हमारे रोके नहीं रुकने वाले। ठीक है, तो उनके डेवलपमेंट के लिए वो क्या कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं कि हम इसे सुधारने की जो है बहुत ज्यादा कोशिश नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा द रिसर्चर्स हैव आल्सो नोटेड दैट द कोरिलेशंस बिटवीन पेरेंटिंग स्टाइल्स एंड बिहेवियर्स आर समटाइम्स वीक। जो पेरेंटिंग स्टाइल था और बच्चों का बिहेवियर था उनके बीच में रिलेशन, ठीक है, वो क्या था, वीक था। इन मैनी केसेस द एक्सपेक्टेड चाइल्ड आउटकम्स डू नॉट मेटेरियलाइज। तो जैसा कि पेरेंटिंग स्टाइल से जो आउटकम एक्सपेक्ट किया जाता है, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑथोरिटेरियन जो पेरेंटिंग स्टाइल है उसमें बच्चे को जो है बेस्ट डेवलपमेंट एक्सपेक्ट की जाती है, बट जरूरी नहीं कि वैसी की वैसी आउटकम हमें मिले। पेरेंट्स विद अथॉरिटेटिव स्टाइल्स हैव चिल्ड्रन हु आर डेफिएंट और हु एंगेज इन डेलिक्वेंट बिहेवियर, while parents with permissive styles have children who are self confident and academic सक्सेसफुल। तो जरूरी नहीं कि जो परमिसिव स्टाइल है उसमें बच्चों को जो बताया गया था कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी, एकेडमिक सक्सेसफुल वो जो है नहीं रहेंगे, वो जो है एकेडमिक्स उनकी परफॉर्मेंस डाउन रहेगी। तो ऐसा पाया गया कि जरूरी नहीं कि आउटकम जो है एक्सपेक्ट किए जाए वही हमें रियल में मिले। इसके अलावा कल्चरल फैक्टर्स आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन पेरेंटिंग स्टाइल्स एंड child outcomes। There is no universally best style of parenting, writes author Dougal Bernstein in his book Essentials of Psychology। तो डोगल बर्नस्टीन ने ये अपनी बुक कौन सी है, एसेंशियल्स ऑफ साइकोलॉजी, इसमें बताया है कि कोई भी पेरेंटिंग स्टाइल यूनिवर्सली बेस्ट स्टाइल नहीं है। Authoritative parenting, which is so consistently linked with positive outcomes in European American families, is not related to better school performance among African American or Asian American youngsters। तो अलग अलग पेरेंटिंग स्टाइल्स का अलग अलग जो रिजल्ट है वो जो है वहाँ की कल्चरल फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। तो कंक्लूजन में आप क्या कह सकते हैं, यू कैन से पेरेंटिंग स्टाइल्स आर एसोसिएटेड विद डिफरेंट चाइल्ड आउटकम्स एंड द अथॉरिटेटिव स्टाइल इज जनरली लिंक्ड टू पॉजिटिव बिहेवियर सच एज स्ट्रॉन्ग सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ competence। However, other important factors including culture, children's temperament, children's perceptions of parental treatment, and social influence also play an important role in children's behavior। तो अदर देन पेरेंटिंग स्टाइल और क्या क्या जो है फैक्टर जो बच्चे की डेवलपमेंट को, बच्चे के बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं, क्या क्या बताए हैं, कल्चर, बच्चे का क्या टेम्परामेंट है, उसका क्या नेचर है, उसका क्या पर्सपेक्टिव है पेरेंटल ट्रीटमेंट की ओर, जो पेरेंट्स हैं वो जैसा बिहेव करते हैं बच्चे जरूरी नहीं कि उसको उसी तरीके से समझे, तो बच्चे का क्या पर्सपेक्टिव है जो पेरेंट्स उसको ट्रीट कर रहे हैं उसको लेकर, और सोशल इन्फ्लुएंस क्या रहा है बच्चे पर,
ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अपना प्ले करते हैं चाइल्ड के बिहेवियर को शेप करने में। Today we completed the topic Parenting Styles Influencing Developmental Aspects of Childhood and Adolescence। हमारे अदर सोशल चैनल्स पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिलेंगी। इसके अलावा आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और यूजफुल रही है आपके लिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।